Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare. Gaur Premanande, Hare. Thank you all very, very much. Hare Krishna. And pranam, dear devotees. So welcome to our evening class today. So yesterday was Bhakti Vinod Thakur's appearance day. So हमने सोचा कि चलिए आज हम इसी टॉपिक पे कर लेते हैं क्लास. और आज जो है श्री हरिदास ठाकुर का भी डिसअपीयरेंस डे भी है आज. So but we'll be talking primarily for Bhakti Vinod Thakur, such a great acharya. और हमारा जो भी हम थोड़ा सा सुनने का प्रयास करेंगे कि आज इस्कॉन के अंदर हम जो भी सारा कुछ करते हैं, उसके अंदर बहुत जो एक बड़ी छाप है. हम लोग श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद के गुरु महाराज के बारे में, पर भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हम लोग इतना नहीं सुनते हैं. और पर हम पाएंगे आप कि जितनी छाप जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो छाप उन्होंने छोड़ी श्रील प्रभुपाद के ऊपर, उतनी ही बल्कि उससे ज़्यादा जो छाप इस्कॉन के अंदर हम पाएंगे कि वो जो है वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की भी है. ये और उनका बहुत योगदान रहा है हमारे पूरे गौड़ीय वैष्णव को एक तरह से उठाने के अंदर और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को. इसलिए we will try to hear something about Srila Bhakti Vinod Thakur and and make our spiritual life successful if we are able to somehow or other glorify
this great acharya properly. So we will begin our class now. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री हरिदास ठाकुर की जय। So जितने भी okay, voice more. Is the voice okay now? Okay. Okay. So माइक के साथ ही धीरे आती। So I'm sorry. So जितने भी हमारे आचार्य हुए, हाँ, और आप पाएंगे कि गौड़िया वैष्णव में एक से एक महान आचार्य हुए हमारे यहाँ। और भगवान इस तरह का कुछ साधन कर देते हैं कि ये जो खास आचार्य होते हैं इनके बारे में ताकि इनकी जो इनका जो इनके जो गुण है, इनकी जो निष्ठा है भगवान के प्रति, हाँ, और इनकी जो क्वालिटीज है, हाँ, वो हर जगह फैले। तो इस तरह से भगवान जो है वो इस तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि वो जो है कि ये जो खास भगवान के पार्षद हैं, इनका नाम और इनकी क्वालिटीज, इनके गुण और निखर के आए। सो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कि जो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है वो अपनी जो द्वापर में जो वृंदावन लीला करते हैं और उसके करने के बाद वो वापस धाम चले जाते हैं। और धाम जाने के बाद ये चैतन्य चरितामृत में आता है सारा प्रसंग। मैं तो संक्षेप में बोल रहा हूँ सारा कुछ, कि वो सोचते हैं कि ये जो मैंने ब्रज लीला की, ये ब्रज लीला को तो सिर्फ ब्रजवासियों के अलावा किसी ने ही नहीं देखा। इवन जो भक्त थे मथुरा में जो भगवान के, उनको भी इनका जो है लाभ नहीं मिल पाया, इस लीला में एंटर करने की नहीं कर पाए। और जो द्वारका में तो कहना ही क्या, कि हम पढ़ते हैं कृष्णा बुक में और भागवतम में किस तरह से वो जो रानियां हैं सत्यभामा रुक्मिणी, वो हमेशा हैरान होते थे कि ये रात को राधे राधे क्यों पुकारते हैं कृष्ण, और किस चीज की कमी है। कोई नहीं है, इतनी सारी 16,108 रानियां हैं, सब में एक से एक अच्छे गुण हैं। और जो मेन जो पटरानी है 108, उसमें भी जो 8 मेन रानियां हैं उसमें से भी जो 2 हैं सत्यभामा और रुक्मिणी। सो किस चीज की कमी है इनको, तो जो है बार बार इस तरह से अपने वृंदावन के ब्रजवासियों को याद करते हैं। तो इस तरह से भगवान ने देखा कि जो सोचा कि किस तरह से इसको करें। तो इसलिए जो भगवान है वो एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं हमें रास्ता दिखाने के लिए, कि अगर हम भगवान की जो ब्रज लीला है, जो भगवान की पर्सनल लाइफ है, जो ऑफिशियल लाइफ है वो वैकुंठ लाइफ है नारायण के रूप में, सारे ऐश्वर्यपूर्ण ऑन रेवरेंस से भरपूर वो लाइफ है उनकी। और करोड़ों सैकड़ों वैकुंठ प्लैनेट हैं, ग्रह हैं जहाँ पर वो नारायण के रूप में दास के तरह भक्त उनकी सेवा करते हैं। और पर जो ब्रज लीला है, जो सबसे गोपनीय ग्रह है
आध्यात्मिक जगत का, तो उसकी एंट्रेंस कैसे मिले, तो ये करते हुए, ये कंपैशन लेते हुए उन्होंने जो है वो एक भक्त की तरह आए। ऑफ कोर्स उनका एक इंटरनल रीजन भी था कृष्ण का, कि वो जो कि जो राधा रानी का जो भाव है, जो प्रेम है, जो अंदर आस्वादन करती हैं, हाँ, कृष्ण के प्रेम को, वो उसका स्वाद रखने के लिए भी वो आए। सो इस तरह से जब चैतन्य महाप्रभु आए, तो उन्होंने पूरे जो स्पेशली जो गॉड रीजन है सारा का सारा, और वहाँ वहाँ पर बहुत ही कृष्ण भक्ति फैली। फिर वो साउथ इंडिया टूर पे गए, और सारे साउथ इंडिया पे, फिर वापस वृंदावन आए, तो पूरे भारतवर्ष में, पर स्पेशली गॉड रीजन में, जो बंगाल और उड़ीसा, साउथ इंडिया, यहाँ बहुत प्रचार हुआ भगवान के नाम का। और उनको देख देख के ही, बल्कि उनको ही नहीं, उनके जो भगवान के जो संगी साथी थे, उनको देख के ही हाँ, लाखों लोग जो है वो भगवान के भक्त बन गए, और वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए। और पर हम उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से जो चैतन्य महाप्रभु के कोई 200 साल जाने के बाद चैतन्य महाप्रभु अराउंड 1500 एडी में आए, और समझ लीजिए कि 1750 एडी तक, जो 200 साल, 200 सवा 200 साल के बाद, जो सारा जो चैतन्य महाप्रभु की शिष्याएं हैं सारी की सारी, वो सारी ढक गई। उसमें कोई भी जो है कोई भी सभ्य पुरुष उस वक्त बताते हैं कि वो गौड़िया वैष्णव से 10 फीट दूर रहते थे। 2 मीटर दूरी बहुत है जरूरी, वैसा नारा था वहां पर, कि कोई भी गौड़िया वैष्णव, क्योंकि उनको लगता था ये सारे लंपट और इमोरल जो पीपल है, वो गौड़िया वैष्णविज्म को अपनाते हैं, क्योंकि उनकी जो सारी जितनी भी उनकी शिक्षाएं थी सारी लुप्त हो गई, और अलग अलग तरह के 13 तरह के अब संप्रदाय बने, गौल, बौल, सखी मिहिती, बड़े सारे असंप्रदाय बन गए। और वो हर एक तरह के अनैतिक कार्य करते थे। जो भी हमारे 4 नियम हैं, वो चारों के चारों नियम तोड़ते थे। कोई 1 तोड़ता था, कोई 2 तोड़ता था, कोई 3 तोड़ता था, कोई 4 तोड़ देता था। और ये सब करते थे चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं के नाम के ऊपर, कि हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हैं, लाइक दिस। तो इसलिए जो है ये सारी जो शिक्षाएं हैं उनकी सारी, वो लुप्त हो गई सारी की सारी। और एक इस तरह से भगवान ने अपनी जो सारी जो शिक्षाएं थी उनको कवर कर लिया। और एक मैं लेक्चर सुन रहा था जिसमें हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि क्यों क्यों किया ऐसे। तो बताते हैं कि एक तो रीजन ये था कि जो भगवान है वो स्वयं कृष्ण प्रेम, क्योंकि आए वो देना चाहते थे ब्रज से, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। जब जब ब्रज की जो लीला खत्म हुई, तो उन्होंने सोचा कि मुझे जो है सबको ब्रज प्रेम देना है। पर जो कृष्ण प्रेम है, अगर हमने जिन्होंने माधुर्य अकादमी पढ़ी है, या प्रभुपाद के लेक्चर में भी प्रभुपाद बहुत बार बोलते हैं कि जो कृष्ण प्रेम है वो कृष्ण नहीं देते हैं। वो कौन देते हैं? भगवान के भक्त देते हैं, स्वयं नहीं देते हैं कृष्ण कृष्ण प्रेम। क्योंकि देंगे तो किसी को देंगे, किसी को नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? पार्शियलिटी हो जाएगी, कि ये तो पार्शियल है, इनको दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, लाइक दिस। तो बड़ा सुंदर, कि कभी हम पढ़ेंगे माधुर्य का दमनी, तो उसमें आता है कि ये जो है ये भेदभाव भगवान नहीं करते हैं। तो भेदभाव कौन करता है? भगवान के भक्त करते हैं। सो इस तरह से महाराज बता रहे थे कि जो भगवान है वो स्वयं कृष्ण प्रेम नहीं देते हैं। हाँ, वो भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में बांटने के लिए, पर क्योंकि स्वयं भगवान है, हाँ, इसलिए भी खुद नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी उनके भक्तों ने बांटा कृष्ण प्रेम, लाइक दिस। ऐसे महाराज तर्क देते हैं। और तो इस तरह से ये सारा जो है उनकी सारी जो शिक्षाएं हैं सारी की सारी लुप्त हो गई। तो उसके बाद जो है 1838 में इनका जो है जन्म हुआ। 1838 में इनका जन्म हुआ। और इनका जो जन्म एक बड़े ही एक धनाढ़ परिवार में इनका जन्म हुआ है इनका। और एक जगह है बंगाल में बीरनगर के नाम से। सो उलाग्राम या बीरनगर बोलते हैं। बीरनगर डिस्ट्रिक्ट है नादिया का, वेस्ट बंगाल का। तो वहाँ इनका जन्म हुआ।
और वो सातवें संतान थे अपने पिताजी की, जिनका नाम था राजा कृष्णनंद दत्ता। और जो इनके पिताजी थे वो जो नित्यानंद हैं, नित्यानंद निताई जिनको बोलते हैं, उनके बहुत ही भक्त थे। तो इस तरह से इनका एक गौड़ीय वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। और और जो बड़ा ही धनाढ़ से पूर्ण इनका जो है परिवार था। जो पिताजी थे सब बहुत ही धनाढ़ थे। और पर जब 11 साल के थे तो इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। और उस वक़्त इनके पिताजी के नाम के ऊपर एक बहुत सारी ज़मीन का जो है वो इनका ज़मींदारी की तरह से इनको दिया हुआ था। पर जब वो पिताजी की मृत्यु हुई तो तो वो जो लैंड है वो इनके हाथ से चला गया। तो जो पूरा जो परिवार है, जो इतना धनाढ़ था, वो पॉवर्टी में आ गया, गरीबी में आ गया। और तो जब ये 12 साल के थे तो इनकी जो माता है, इन्होंने इनकी जो है शादी एक बंगाली गौड़ीय वैष्णव के साथ ही, उनकी पुत्री के साथ उनकी कर दी। और और ये धीरे धीरे इन्होंने अपना स्कूल ज्वाइन किया। और मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इनकी। ये इनके युवावस्था की पिक्चर है, शिला भक्ति विनोद ठाकुर के युवावस्था की पिक्चर है ये। तो इस तरह से ये दिखते थे। और हाँ, और इनका फिर पहले जो है स्कूलिंग घर में ही हुई इनकी। और उसके बाद जो है इनको इनकी जो एक किसी अच्छे वहाँ स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल में इनको दाखिला मिला। और धीरे धीरे जो है इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की। और एजुकेशन जब तक ये पढ़ाई कर ही रहे थे उसके साथ साथ ही इन्होंने जो है अपने जो अंकल हैं, केदारनाथ, उनको ये असिस्ट करते थे। उनके न्यूज़पेपर निकलता था उनका, सो उनको आर्टिकल्स लिखने में असिस्ट करते थे, एडिटिंग करने में इस तरह से असिस्ट करते थे उनकी। और जब ये 18 साल के हुए तो फिर ये कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की। और उस वक़्त 18 साल की उम्र से ही इन्होंने इंग्लिश में और बंगाली में आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए इन्होंने। और शुरू में कॉलेज के टाइम में इनको क्रिश्चियन थियोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, भक्ति विनोद ठाकुर को। और इन्होंने जो क्रिश्चियन थियोलॉजी के बारे में पढ़ा, और उसमें इनका बहुत इंटरेस्ट था उसके अंदर। तो इन्होंने उनकी जो रिलीजियस बुक्स हैं, वेस्टर्न जो लिटरेचर है रिलीजियस, उसको बहुत पढ़ा इन्होंने। और उसके बाद जो है ये अपने अपनी पढ़ाई करके अपना जो है कि अब सोचने लगे कि अब मैं अपना जो लाइवलीहुड है कैसे करूं, अपना राह गुजर कैसे करें। और इनको बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इनको लगता था कि जो व्यक्ति बिजनेस करता है तो उसको कुछ ना कुछ झूठ बोलना पड़ता है, तो वो नैतिकता से कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, ये एक स्कूल के टीचर बन गए। इन्होंने एक स्कूल में टीचर बन गए। और फिर जिस स्कूल में टीचर बने उड़ीसा के अंदर, उस वक्त गौड़ मंडल एक ही था, तो उसके बाद वहीं पर ये उसके हेडमास्टर भी बन गए। उस स्कूल के बाद में एक इनको टीचर की पोस्ट मिली, कहीं ट्रांसफ़र हुई, और फिर दूसरे स्कूल में जाके इनको एक हेडमास्टर की पोस्ट मिल गई कटक में अंदर जाके। और इनका जितना भी इनका जो इनका इनका ज्ञान देख के और इनकी नॉलेज देख के सब लोग जो है वो बड़े प्रसन्न थे इनसे। और उसी वक्त जो है 1860 में इनका जो पहला पुत्र है अनंत प्रसाद, जिनका बाद में अच्युतानंद नाम पड़ा दीक्षा के बाद, वो हुआ। पर अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो है जो बच्चे को जन्म देते हुए जो उनकी पत्नी है उनका देहांत हो गया। और फिर थोड़े टाइम के बाद इन्होंने दूसरी शादी की, और उनकी वाइफ का नाम था भगवती देवी। और उसके बाद इन्होंने एक बुक पब्लिश की उसी दौरान, जब ये सब कर रहे थे इन्होंने एक बुक पब्लिश की। और उसमें जितने भी भारत के जो मेन आश्रम है और मंदिर हैं उड़ीसा के अंदर, उनका बखान किया इन्होंने। और इन्होंने सारे जो
इनको बड़ा इंटरेस्ट था कि फिलॉसफी में, कि जितने अलग अलग जो रिलीजियस सेक्ट हैं भारतवर्ष में, हाँ, इंक्लूडिंग जो क्रिश्चियंस भी उस वक्त बहुत सक्रिय थे, तो ये अलग अलग सबके दर्शन पढ़ते थे, हाँ, और देखते थे कि इनकी क्या क्या इनके रिचुअल्स हैं, कैसे करते हैं। और पर तब भी इन्होंने देखा कि जब लोग हैं वो धर्म को बहुत सस्ते में लेते हैं, बहुत ध्यान से धर्म का जो जो धर्म का जो असल है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि, हाँ, और फिर धीरे धीरे इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। और उस वक़्त इन्होंने इनको कहीं भी बंगाल के अंदर वो जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं और जो चैतन्य चरितामृत है वो कहीं नहीं मिली, जबकि बड़े ही सीनियर पोस्ट पे थे। हाँ, इनको साल 1.5 साल के बाद उड़ीसा में एक कॉपी मिली, और जब इन्होंने पढ़ा चैतन्य चरितामृत को तो फिर बार बार पढ़ा इन्होंने रिपीटेडली, हाँ, बिकॉज उनको इतना अच्छा लगा। और फिर देखा इन्होंने कि किस तरह से कि जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, हाँ, वो सर्वोच्च हैं, और जो उनका संकीर्तन जो आंदोलन था उससे उससे बढ़िया और उससे आसान तरीका किसी भी धर्म में नहीं दिया हुआ, हाँ, भगवान का प्रेम प्राप्ति करने के लिए या भगवान को प्राप्ति करने के लिए। सो उस वक्त जैसे मैंने बताया आपको कि कोई भी जो है वो गौड़ीय वैष्णव को, हाँ, हाथ नहीं लगाना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि ये सारे लंपट है, हाँ, और अनैतिक कार्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का नाम लेके। तो इस तरह से जो चैतन्य जो अ, भक्ति विनोद ठाकुर हैं, हाँ, उन्होंने ये चैतन्य चैतन्य बार बार पढ़ी और उस पर अपना टीका लिखा, अमृत भाष्य, हाँ, उस पर अपना टीका लिखा उन्होंने, और उसको फिर इन्होंने पब्लिश कराया। और इसी तरह 1861 में जो ये लोग जो केदार, इनका जो नाम था केदारनाथ दत्ता था, सो ही बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपको भी दिखाता हूँ इनकी पिक्चर, ये देखिए, ये इनकी पिक्चर है ऑफिशियल ड्रेस के अंदर, किस तरह से इनका ठाट बाट। ये भी देखिए, ये भी पिक्चर है, हाँ, so you can find, you feel कि there is some different person in all picture, हाँ, so ये जो है इनका ऑफिशियल ड्रेस के अंदर। सो उस वक्त भारत में ये जो है सर्वोच्च आईसीएस करना पड़ता था, इंडियन सिविल सर्विसेज, तो आईसीएस करके बहुत कम लोग कर पाते थे, तो इन्होंने बाद में आईसीएस की और जो है डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने। और तो डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने पहले बंगाल के अंदर, और फिर इनको कलेक्टरेट ऑफिसर्स बना दिया गया। फिर उसके बाद इनको डेप्यूटी रजिस्टर बनाया गया डेप्यूटी कलेक्टर के साथ। और इस तरह से इनकी ट्रांसफ़र होती रही अलग अलग जगह, बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, और यही सब करते हुए इन्होंने बंगाल में एक स्कूल भी खोला इन्होंने न्याय शास्त्र पढ़ने के लिए। न्याय शास्त्र मतलब जो लॉजिक के ऊपर बेस होता है, तर्क के ऊपर, हाँ, तो वो पाठ का उन्होंने एक स्कूल भी खोला वहाँ पर, कि छपरा के अंदर, उन्होंने ये स्कूल खोला न्याय शास्त्र के ऊपर। और फिर बाद में इनकी ट्रांसफ़र हो गई पूर्णिया में, फिर वहाँ से दिनाजपुर आ गए। तो इस तरह से इनकी ट्रांसफ़र होती रही। और और ये जो है डेप्यूटी मजिस्ट्रेट बने, जो हाईएस्ट पोस्ट थी, किसी भी भारतीय को इसके ऊपर की पोस्ट नहीं मिलती थी। तो इस वक्त इन्होंने जो है श्रीमद् भागवतम पढ़नी शुरू की, चैतन्य चरितामृत पढ़ी। और इनका जो फेथ है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर वो बढ़ता चला गया, हाँ। और फिर इसी तरह इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो पहली बुक है वो पब्लिश की, सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, हाँ, ये इन्होंने पब्लिश की बुक। और धीरे धीरे इन्होंने भागवतम के ऊपर, हाँ, जो है लेक्चर देने शुरू कर दिए इन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने, हाँ, तभी केदारनाथ दत्त के नाम से थे। सो इस तरह से अलग अलग घटनाएं हुई इनके जीवन में, कि कहीं भी अंधविश्वास को जो है उसको टिकने नहीं देते थे। और एक बार चंपारण में एक बार इनकी जब पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पर जो है जो एक लोग हैं वहाँ के, वो एक भूत को, जो है एक पीपल के पेड़ में एक भूत रहता था, उसकी पूजा करते थे। तो इनको पता चला कि वो जो भूत है, कि उसकी कि जो लोकल जो भी वहाँ का जज है उसके ऊपर उसका कोई होल्ड है।
तो अगर आप इस भूत की पूजा करो तो वो जो जज से आप अपने फेवरेबल कोई भी जो आपका जो भी केस है उसको फेवर करा देते थे। तो इन्होंने जो है केदारनाथ दत्ता ने, जो भक्ति विनोद ठाकुर, तो इनका नाम बाद में पड़ा। सो केदारनाथ दत्त, उन्होंने एक लोकल जो एक स्कॉलर है उनको बोला कि अगर आप एक उस पेड़ के नीचे जाके आप श्रीमद् भागवतम पढ़िए, और बोला कि कंटिन्यूस पढ़ते जाएगा, रुकिएगा मत। हाँ, सो वो 1 महीने तक वो जो स्कॉलर है वो श्रीमद् भागवतम का पाठ करता रहा उस पीपल के पेड़ के नीचे, और 1 महीने के बाद वो जो पेड़ है, हाँ, वो फट गया। और वो भूत ने कभी किसी को उसके बाद तंग नहीं किया। फिर उसके बाद चंपारण के बाद इनकी जो पोस्टिंग है वो जगन्नाथपुरी में हो गई, और हाँ, उनकी भी खुशी का ठिकाने नहीं रहा कि भगवान के इतने धाम के अंदर ही आ गए। और वहीं पर एक और स्टोरी है, जिन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर जो प्रभुपाद का जो टीवी सीरियल है उसके ऊपर कोई फल्गू बाबा की स्टोरी आती है, तो वो भी वहीं वहीं हुआ कि उड़ीसा के पास एक जो है कमल नल एक जगह थी, वहाँ पर एक बिशक सेना नाम एक व्यक्ति था, और उसके अंदर कुछ सिद्धियां थी कि वो आग के अंदर अपना सिर डाल के वापस निकाल लेता था, और सीधा बैठा रहता था और आग के अंदर फेस डाल के निकाल, ऐसे ऐसे कर सकता था, वो ऐसी सिद्धि थी उसके पास। हाँ, और उसके 2 जो हैं वो एक क्या बोलते हैं चमचे भी थे, जिनको वो ब्रह्मा और शिव बोलता था। तो बोलता था कि मैं जो हूँ जो विष्णु का अवतार हूँ, और जो त्रिमूर्ति हैं ये ब्रह्मा, शिव और विष्णु, हम तीनों हैं, और बोलते थे कि मैं जो हूँ इनमें से महाविष्णु मैं हूँ, तो मेरी पूजा करो, इस तरह से। हाँ, तो इस तरह, और उसने बोला कि अगर आप ये जो ये जो अंग्रेज हैं, अगर आप इनको उड़ीसा से हटा देंगे तो मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा, और जो प्रजा है बहुत सुखी रहेगी। और तो इस तरह से जब उसने बोलना शुरू किया तो जो अंग्रेज थे वो घबराए, और घबराए तो नहीं, पर उनको उनको हुआ कि क्या करना है। तो उन्होंने जो पर वो जो तांत्रिक था, हाँ, वो एक तांत्रिक भी था, और उनको पता था कि ये लोगों को ठीक करता है, किसी को कोई नुकसान भी पहुंचाता है, तो डरते भी थे। तो उन्होंने एक व्यक्ति को पता करके पता चला उनको कि ये भक्ति विनोद जो केदारनाथ दत्ता है यहाँ पर रहते हैं, तो और ये बड़े ही उच्च कोटि के भगवान के भक्त हैं, और बहुत बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है। तो उन्होंने उनके पास उनको अप्रोच किया भक्ति विनोद ठाकुर को, और उनको बोला कि ये अ, जो व्यक्ति है इस तरह से, हाँ, ये इस तरह से लोगों को भड़का रहा है हमारे अंग्रेजों के प्रति, तो इसको जो है आप ठीक करके इसको सजा दीजिए। हाँ, और पर सब डरते थे। ये तो उन्होंने नहीं बोला कि अब सब डरते हैं, पर उनके पास भेज दिया उन्होंने। सो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे रेवन शाह थे, तो उन्होंने फिर इनको रिक्वेस्ट किया, और तो ये जो है जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, स्वयं मिलने गए बिशप सेना से, और उन्होंने जब अपने योग सिद्धि दिखाई उस योगी ने, तो इन्होंने देखा कि हाँ इसके पास कुछ योग है, और यू नो कुछ इसके पास योग शक्ति है। और वो जो बाबा था उसने उनको बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, और मैं ये भी जानता हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें किसने भेजा है, पर मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि मेरे किसी काम में विघ्न मत मत डालना। और जो भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने बोला कि नहीं, आप तो योग में सिद्धि है, आपको पता है, पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और आपको तो जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए। तो ये जो था एक छोटे टाउन में था, नॉट इन जगन्नाथपुरी, ये एक छोटे था कमन नल है, ऐसे बोलते हैं उस स्थान को। तो इन्हें बोला कि आपको यहाँ रहने का, आप यहाँ क्यों छोटे से गांव में पड़े हैं, आपको तो जगन्नाथपुरी में जाना चाहिए, और वहां पर जो है भगवान का आशीर्वाद दीजिए और वहां रहिए। तो जो भिषिक्शाना था उसने बड़ा ही अहंकार में होकर जवाब दिया कि मैं उन जगन्नाथ के पास क्यों जाऊं, हाँ, वो तो लकड़ी का जगन्नाथ है, जबकि स्वयं संपूर्ण विष्णु यहाँ खड़ा है। तो जैसे ही उसने बोला, तो उनको भक्ति विनोद ठाकुर को बहुत क्रोध आया, और उन्होंने जो है उनको जो अरेस्ट करने का निर्देश दे दिया, और उसको जेल में डाल दिया। और बोलते हैं कि वहां पर 3 दर्जन कांस्टेबल और 72 पुलिस वाले जो हैं इनकी जेल के रखते, क्योंकि सब डरते थे, क्योंकि ये तांत्रिक था। तो इनका जो ट्रायल है इस तांत्रिक का 18 दिन चला, और हुआ क्या कि जब छठे दिन का ट्रायल हुआ, तो जो इनकी पुत्री थी कादम्बिनी भक्ति विनोद ठाकुर की, वो बहुत ही
सिक हो गई, बीमार हो गई, और ऐसा हालत हो गई कि जैसे मर जाएंगी। और सब ने बोला कि वो तांत्रिक ने ही किया है, आप छोड़ दो उसको, तो ये तो इस तरह से हम सबको मार डालेगा। तो जो केदारनाथ डटा, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कि उन्होंने बोला कि मरते हैं तो सब मर जाएं हम, कोई बात नहीं, बट ये जो रास्कल है, ये जो चीटर है, ही मस्ट बी पनिश्ड, डजेंट मैटर इफ यू ऑल डाई। हाँ। और उसके बल्कि 2 दिन के बाद जो इनकी अपनी तबीयत बहुत खराब हुई, और बहुत ज़्यादा इनको जो ज्वर है आया, जिस तरह से इनकी पुत्री को आया था, पर वो टिके रहे कि मुझे इसको जो है सजा देनी है। तो 18 दिन जो है, और फिर इसको इन्होंने सजा दी, और इसको सजा सुनाई कि इसको 18 महीने की जेल हुई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के लिए। और फिर जेल में जाते हुए ये जो इन्होंने, उसके बड़े लंबे लंबे बाल थे तांत्रिक के, तो उसके बाल कटवा दिए। हाँ, सो वो बाद में बोलते हैं कि जो तांत्रिक की उसकी शक्ति थी बालों में थी, और बाल कट गए, तो वो जो है वो एक तरह से बेहोश हो गया। फिर इसको जो है जेल में ले डाल दिया, और 3 महीने के बाद जहर खा के वो जो योगी था उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह से ये तो एक उदाहरण है, पर बहुत जगह, बहुत मंदिरों में, बहुत जगह इन्होंने जो जो ढोंगी हैं, जो चीटर हैं, जो ठीक पंडे नहीं हैं, उनका इन्होंने बहुत विरोध किया इन्होंने। और उसका उसका इन्हें उसकी वजह से इनको आलोचना भी सहनी पड़ी। बट क्योंकि इतने इनका जो चरित्र है वो इतना ऊंचा था, इनको शास्त्रों का इतना ज्ञान था, और हर एक व्यक्ति इनसे अत्यधिक प्रभावित था, तो कोई इन पे उंगली नहीं उठा सकता था। सो इसी तरह पुरी के अंदर रहते हुए इन्होंने जो है भागवतम, जो पूरी जो श्रीधर स्वामी का टीका लिखा हुआ है, वो पूरी पढ़ी। और उसके बाद इन्होंने जो षट संदर्भ हैं जीव गोस्वामी के, वो पढ़े छियों के छियों। और स्पेशली जो उसके बाद इन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु है, रूप गोस्वामी द्वारा रचित, जिसको हम नेक्टर ऑफ डिवोशन के बारे में समरी स्टडी की तरह जानते हैं, वो इन्होंने पढ़ी। और उसके बाद जो कुछ टाइम था इनका, 1873 से लेके 1893 तक, वो इन्होंने एक तरह से सेक्लूजन में गुजारा। इन्होंने टोटल अपने जीवन में 100 से अधिक जो है इन्होंने पुस्तकें लिखी। हाँ, और उस वक्त जो सेक्लूजन वाला टाइम था, इन्होंने कृष्ण संहिता लिखी, जो एक बहुत ही उत्तम बुक है। अगर भागवतम करने के बाद आप लोगों को कृष्ण संहिता हमें पढ़नी चाहिए। हाँ, वो कृष्ण संहिता इन्होंने लिखी, फिर एक तत्व सूत्रम लिखा, फिर तत्व विवेक लिखा, बहुत, और बंगाली में कल्याण कल्पतरु जो है वो इन्होंने लिखी। और संस्कृत में लिखी, अंग्रेजी में लिखी, बहुत लिखी इन्होंने इस तरह से। और इस तरह से इन्होंने पहला वहां पर एक सोसाइटी भी बनाई इन्होंने, भागवत भागवत समसत के हिसाब से। हाँ, वहां पर जगन्नाथपुरी में एक सोसाइटी बनाई कि जितने भी वैष्णव हैं हम सब इकट्ठे होके इस ग्रुप को ज्वाइन करते हैं। हाँ, और उसमें से जो एक थे रघुनाथ दास बाबा जी, उस टाइम के, हमारे हमारे वाले रघुनाथ दास बाबा जी नहीं, पर रघुनाथ दास बाबा जी उस वक्त एक वैष्णव होते थे। तो सब लोग उस सोसाइटी में शामिल हुए, पर वो एक जो रघुनाथ दास बाबा जी हैं वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने बोला कि ये जो है हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर है, कंठी माला और तिलक हमेशा नहीं पहनते हैं। हाँ, तो बोला कि इसलिए मैं इनके यहाँ नहीं जाऊँगा, इनकी सोसाइटी में नहीं जाऊँगा। और कहते हैं कि और उन्हें बाकियों को भी बोला कि इनकी सोसाइटी में मत जाइए। और बोलते हैं कि उसके कुछ ही समय बाद उनकी रघुनाथ दास बाबा जी की मृत्यु हो गई। और मृत्यु नहीं हुई उनकी, उनको बहुत ही ज्वर चढ़ गया उनको। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। और एक दिन रात में, पर क्योंकि भगवान के भक्त थे पर इनको नहीं पहचान पाए, सो रात में उनको जगन्नाथ जो है, भगवान जगन्नाथ स्वयं रघुनाथ दास जो है बाबा जी के स्वप्न में आए, और उन्होंने बोला कि आप जाके भक्ति विनोद ठाकुर से माफी मांगिए। तो उस वक्त जो है तब उनको पता चला कि ये कितने महान व्यक्ति हैं जिनके लिए स्वयं जगन्नाथ भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं। तो इस तरह से बहुत सारे प्रसंग हैं जहाँ पर जो लोग हैं वो बड़े बड़े ही इनसे प्रभावित थे। और ऐसे एक और बाबू जी थे जो वहाँ पर भजन करते थे, निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। तो मतलब ये बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बंगाल में, वृंदावन में भी, कि जहाँ वो हरे कृष्ण महामंत्र को ट्विस्ट कर देते हैं।
सो ऐसी एक चरणदास बाबा जी थे वहां पर, जो बोलते हैं निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, लाइक दिस पब्लिक। हाँ, तो इन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत उनको 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 समझाया और उनको बताया कि किस तरह से कि जो एक अनऑथोराइज मंत्र है उसको नहीं बोलना चाहिए। हाँ, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, और और पर फिर ये इनके पास बार बार जाके कराते थे। फिर अंत में वो जो चरणदास बाबा जी हैं वो मान गए, और उन्होंने इनसे क्षमा मांगी कि मैं गलती मांगता हूँ। और तो इस तरह से इन्होंने बहुत ही प्रभावी इनकी पर्सनालिटी थी। और अपने टाइम के उस समय के ये जो 1800 का जो टाइम चल रहा था, 60 70 80 90, ही वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द फोरमोस्ट रिलीजियस स्कॉलर इन इंडिया एट दैट टाइम। इस तरह था। तो इसी तरह से हमें मालूम है किस तरह से एक बार स्वप्न के he had a vision of स्वरूप दामोदर, जो चैतन्य महाप्रभु के सेक्रेटरी थे। और वो आए और इनको बोला कि आप जो है जो शास्त्र है उसको संबंध अभिधेय और प्रयोजन के रूप में करके चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को बताइए। ऐसे बताया। हाँ, और तो उसके बाद जो है इन्होंने लिखा, और बहुत इन्होंने जिसे आप कृष्ण संहिता पढ़ेंगे और तो आप पाएंगे कि किस तरह से कि उन्होंने इनको बोला कि जो भागवतम का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य, कि उसकी टीका करिए संबंध अभिधेय प्रयोजन के रूप में। तो ये कौन आ रहे? स्वरूप दामोदर, जो राइट हैंड मैन है चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने आया इनके सपने में और बोला कि आप इसका टीका करिए, लाइक दिस। और इसी टाइम के ऊपर ये जगन्नाथ जो मंदिर है उसके भी हेड ये बन गए, और वहां पर भी उन्होंने बहुत सारी अलग अलग तरह से लोग वहाँ कपट के कार्य करते थे, इन्होंने ठीक किया। भगवान की जो सेवा होती है उसको ठीक से स्टैंडर्ड लेकर आए। और बल्कि एक जगन्नाथ जो मंदिर है उसके अंदर इन्होंने एक भक्ति मंडप भी स्थापित किया, जहां पर हर रोज भागवतम पढ़ते थे सब लोग आके। सो इस तरह से फिर 1874 में इन्होंने प्रार्थना की वहां पर भगवान जगन्नाथ को कि मेरे पास इतना समय नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आपका कोई विशेष भक्त आए जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का प्रचार करे। तो इस तरह से उस वक्त जो है उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम इन्होंने रखा बिमला प्रसाद। और जो आगे जाके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के रूप में प्रसिद्ध हुए, जो श्रीला प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। और हमें पता है कि किस तरह से, ये देखिए, एक तो मैं आपको फोटोज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये भक्तिविनोद ठाकुर हैं। आई डोंट नो कि कौन से पुत्र हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो नहीं है, बट इज ओल्डेस्ट, वेरी ओल्ड पिक्चर ऑफ हिज विद वन ऑफ हिज। ये है पूरी पिक्चर जो उनकी फैमिली के साथ है, सारे के साथ। दिस इज ओल्ड पिक्चर। ये इनकी अपनी पिक्चर है, और उसमें बड़ा लाइट ऑटोग्राफ है इनका, भक्तिविनोद ठाकुर का। ये फर्स्ट पेज, ये ये उनकी लेखी, उनके हाथ से लिखी हुई है। इनका मैं बताता हूँ आपको। सो इस तरह से जो भक्तिविनोद ठाकुर हैं, ये उनका उनका जन्म हुआ, और उनके पुत्र को प्राप्ति हुई श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। और जब ये 6 महीने के थे तभी वो जो जगन्नाथ रथ यात्रा जब निकलती है, तो उसी रथ यात्रा के टाइम के ऊपर जो आपने रथ यात्रा, मैंने पिक्चर तो रखी थी, ये देखिए। हाँ, तो इसी रथ यात्रा के दौरान जो है, जब रथ उनके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, तो इनका जो घर था वो बिल्कुल ही पास उसी रोड पे था, जो मेयर जो रोड जहाँ से रथ निकलता है। तो वहां पर जब बिमला प्रसाद 6 महीने के थे, तो जो जगन्नाथ का जो रथ है उनके घर के आगे रुक गया। तो रुका रहा वहां पर, 3 दिन तक रुका रहा वहां। तो बीच में फिर जो है उनकी जो पत्नी है और ये भक्तिविनोद ठाकुर ये छोटे बच्चे को लेकर आए,
और उनको वहाँ पर अन्न प्रसाद, जो पहली बार अन्न खाता है पुत्र, तो वो जगन्नाथ प्रसाद से उनका जो है पहला अन्न पाया उन्होंने। और उसके बाद जो है जब वो उनको माथा टिकाया तो भगवान के गले से एक माला उनके जो है बच्चे के ऊपर गिर गई। और इनको ये रहा कि यकीन रहा कि ये जो है अ, अ, कि यही वो रे ऑफ विष्णु है जिनका मैंने प्रार्थना की थी जगन्नाथ से, वो मेरे घर में उनका जन्म हो गया। और बचपन से ही हाँ जो है इन्होंने अपने किसी भी बच्चे को, दोनों माता पिता ने, भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी, दे वर वेरी रिलीजियस एंड पायस पीपल एंड वेरी स्ट्रिक्ट गौड़िया वैष्णव। और इन्होंने कभी भी अपने बच्चों को प्रसाद के अलावा और कुछ खाने को नहीं दिया। और कभी भी जो अवैष्णव थे उनका संग कभी नहीं होने दिया। बल्कि हमें मालूम है एक बार किस तरह से कि जो बिमला प्रसाद थे, एक बार वो 4 साल के थे, तो एक बार जब वो पहली आम की फसल, जब भी पहले आम फ्रूट आता है तो भगवान को ऑफर होता है, तो उन्होंने वो पहली जो आम आए वो रखे हुए थे, तो 4 साल के बच्चे ने खा लिया। तो उन्होंने जो भक्तिविनोद ठाकुर ने उनको हल्का से डांटा कि ये नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि भगवान के भोग के लिए था ये। पर उनको इतना असर हुआ उस 4 साल के बच्चे को, बिमला प्रसाद को, हाँ, कि उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा। हाँ, बल्कि कभी कोई आम लेकर आता था बाद में भी, तो बोलते थे कि मैं जो हूँ अपराधी हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने भगवान का भोग खाया है। और इतना अच्छा जब ये बड़े हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो इन्होंने भगवत गीता जब ये 7 साल के थे, 7 या 8 साल के थे, तो इन्होंने जो पूरी जो है भगवत गीता जो है कंठस्थ कर ली थी। हाँ, बल्कि कंठस्थ ही नहीं कर ली थी, बल्कि उस पर टीका भी दे देते थे। हाँ, अगर कोई श्लोक पूछता था इस श्लोक का मतलब क्या है, तो जो मतलब है मतलब ही समझा देते थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने, भक्ति विनोद ठाकुर ने इनको अपने साथ लगाया कि जो अपनी जो प्रिंटिंग प्रेस करते थे, हाँ, और सारा जो कार्य करते थे उसके साथ इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लगाया। और धीरे धीरे इनको जो भी हम देखेंगे उसके अंदर इनको जो है ट्रेनिंग दी उन्होंने। और और हम पाएंगे कि जितना भी हमारा, और इनके अ, जो जो इनके जो आर्टिकल्स हैं, जो इनकी बुक्स हैं, वो सारी की सारी आप पाएंगे दे आर वेरी रिवोल्यूशनरी। हाँ, तो मैं आपको जो एक है वो आपको मैं दिखाता हूँ। आप अगर हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो आप पढ़ेंगे। मैं आपको एक पढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि आप, कि जिसमें बोलते हैं, इन्होंने ये लिखते हैं कि कैसे हमें किसी भी धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए। तो लेट मी सी, अगर आप इसी से पढ़ सकते हैं तो, कैन यू सी रोनी प्रभु? Yes, Guruji. रीडेबल? Yes. ओके, कैन यू रीड? गिव मी वन सेकंड, वन सेकंड, Yeah. एक मिनट, just prepare yourself. I'll just change this. Thought I had changed this. Yes प्रभु, प्लीज गो अहेड। सो ये एक आर्टिकल है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। और हाँ, इस आर्टिकल को मैं कई बार पढ़ लेता हूँ कभी कभी, और मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि इसको ढूंढ के इसको पढ़िए, इस आर्टिकल को, कि इतना रिवोल्यूशनरी है ये चेतनता के लिए, कि किस तरह से हमें किसी धर्म का निरादर नहीं करना चाहिए, उसके बारे में ये भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। पढ़िए प्रभु जी। Though men in various countries on various continents have a wide variety of natures, the principal nature is only one. Only the secondary characteristics are many. But though the principal nature is one, there will not be found any two people in the world who have identical secondary qualities, as even twin born of the same womb have some differences in form and quality. One cannot expect that people born in different countries सॉरी प्रभु, सॉरी सॉरी, ये ये है प्रभु जी। can ever have exactly the same qualities. Different countries have different water, air, mountains, forests, eatables, and clothing. Because of this, the people of these places have naturally developed different physiques, complexions, customs, clothing, and food. Similarly,
the people's mentality will differ, and thus various people's ideas of God, though being basically similar, will differ in details. When men in various countries surpass the uncivilized stage and progress to the civilized stage, the scientific stage, the moral stage, and the devotional stage, they will develop differences in language, dress, food, and mentality. This gives rise to difference in the modes of worship of God. Considering the matter objectively, there is no harm in secondary differences. If there is agreement concerning the essential nature of God and his worship, there should be no obstacle in attaining the same result. Thus, Mahaprabhu has instructed that we should instruct everyone to worship the pure form of the Lord, but at the same time, we should not criticize others' modes of worship. Because of the above reasons, we see the following differences amongst the religion of different countries. Difference of teachers or prophets, number one. Number two, difference in worshippers' mentality and the consequent expression of reverence. Number three, difference in procedures of worship. Number four, difference in conceptions of God. Number five, difference in God's name and statements due to difference in language. Thus, people in India give respect to the rishis. In other countries, they respect prophets like Muhammad. In other countries, they respect Christ. And in other places, the inhabitants give respect to various native sages. It is imperative that the people of the country give proper respect to the native saints. But no one, though he may though he made hold his particular belief to benefit his own progress, should go to other places and preach that what his teacher have taught is superior to all other teachings. This gives no benefit at all to the world. Concer- Concerning different expressions of reverence, in India, the worshipper sits on an asan and after performing nyas and pranayam, he begins his worship. The Muslim faces towards Mecca and worships 5 times a day by bowing down. The Christian kneels down with folded hands and with humility praises the Lord in either church or house. Each country has its particular rules concerning proper dress, food, purity, and impurity. If one examines the different religion, one will see different rituals. One will also different conceptions concerning the objects of worship. Some people overcome the devotion in their heart, establish the form of the Lord in their soul, in their mind, and finally in the external world. Understanding that the form is non different from the Lord within, they worship that form. In some religions, because the greater emphasis on logic, the worshipper simply forms a conception of God in the mind and worships it. They do not accept an external form of the God. In reality, however, all these conceptions are forms of the Lord. According to language, according to language differences, different religions call God by different names. The religion have different names and the languages used during worship are also different. Because of these five differences, it is only natural that various religions will appear quite different. However, it is improper and detrimental to argue over these differences. If one goes to someone else's place of worship, one should think the people are worshipping my Lord, but in a different way. Because of my different training, I cannot quite comprehend this system of worship. However, through this experience, I can deepen my appreciation for my own system of worship. The Lord is only one, not two. I offer respect to the form I see here and pray to the Lord in this new form that He increase my love for the Lord in His accustomed form. Those who do not follow this procedure, but instead criticize other systems of worship and show hatred, violence, and envy are worthless and foolish. The more they indulge in useless quarreling,
the more they betray the very goal of their religion, Jeev Dharma. हरे कृष्ण. सो यू कैन सी, अभी इतना पढ़ते हुए सुनते हुए हमें वी कैन नॉट अब्सॉर्ब, बट यू कैन सी द ब्रॉड माइंडेडनेस ऑफ ए वैष्णव. यू नो, जहां पर ये कह रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर किस तरह से कि हमें कभी भी एक धर्म से दूसरे धर्म के ऊपर डिफरेंस के ऊपर हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए. और आप पाएंगे कि प्रभुपाद और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे फॉलोड दिस टू द टी. प्रभुपाद नेवर क्रिटिसाइज एनी रिलीजन, रादर ही ऑलवेज एक्सेप्ट कि जो he took Christians and Muslims also as Vaishnavas because they had a conception of God. You know, so he used to say कि you are on my side, we are on one side, we are fighting against the atheist. हाँ, वो उनको ये जरूर बोलते थे कि आप अपने धर्म का ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं, जो आपके धर्म में लिखा है, जो आपके शास्त्र में लिखा है, वो आप पालन नहीं कर रहे हैं, उसके लिए जरूर डांटते थे. हाँ, पर जब एक फिलॉसफी की बात आती थी तो ये बोलते थे कि ये भी वैष्णव है क्योंकि they have some concept of God. और आप पाएंगे इसी तरह से कि ये जो अभी हमने पढ़ा जैव धर्म से, सो ये कि इनके जो विचार हैं, जो वैष्णव जो हैं, हाँ, वो बहुत ही ब्रॉड माइंडेड है. हाँ, दे आर नॉट नैरो माइंडेड, दे आर नॉट यू नो सेक्टेरियन. वी आर वैष्णव धर्म, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव आर नॉट सेक्टेरियन. यू नो, तो जो सारी की सारी इसकी जो जड़ रखी, वो चैतन्य महाप्रभु और उनके जो पार्षद के जाने के बाद वो सारी की सारी भक्ति विनोद ठाकुर ने रखी. ऑल दैट सारा का सारा इन्होंने रखा. और आप पाएंगे कि जितना भी हमारा 1896 के अंदर जब इन्होंने एक बुक लिखी इन्होंने, और वो बुक का इन्होंने जो वितरण है वो सारे संसार में किया. हाँ, वो बुक क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ. देखिए बुक का कवर, तो वो जो है बुक जो है ये है वो बुक. ये चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के ऊपर थी. हाँ, और इसका नाम था श्रीमद गौरंग लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम. तो इस किताब के उन्होंने शुरू में उन्होंने लिखा, चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखी, और 1896 में उन्होंने विश्व की जितनी भी मेन यूनिवर्सिटीज थी वहां पर ये बुक को भेजा इसको. और आप में से जिनको याद हो तो 1896 जो है वही वो साल है जब श्रीला प्रभुपाद का जन्म हुआ. हाँ, और प्रभुपाद इस चीज़ की व्याख्या भी करते थे बहुत बार कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि इसमें जो है कनेक्शन है हम दोनों का, और वो कनेक्शन था भी. हाँ, और इनकी एक और बड़ी भविष्यवाणी थी कि कब वो समय आएगा. हाँ, ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये भी आप पढ़ सकते हैं. कैन यू रीड? ओके, आई हैव नॉट डन स्क्रीन शेयरिंग, वन सेकंड. तो देखिए ये 1885 में ये इन्होंने लिखा. कैन एनीबडी रीड व्हाट इज रिटन? ये इनकी भविष्यवाणी थी भक्ति विनोद ठाकुर की, और आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि वो कौन व्यक्ति थे जिसने भविष्यवाणी को सार्थक किया. और जो ये कह रहे हैं, हाँ, आप पाएंगे कि उस वक्त, हाँ, 1885 1890 में जब लिख रहे हैं तो देश पूरी तरह से गुलाम है. अंग्रेज जो है प्रचार कर रहे हैं, और पहले ही बहुत सारे जो भारतीय हैं, हाँ, वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए. उसके बाद जो है अंग्रेज आए, हाँ, उन्होंने भी अपने धर्म का बहुत प्रचार किया, हाँ, और कन्वर्ट किया लोगों को. और उस वक्त जो है ये भविष्यवाणी कर रहे हैं. सो कैन समबडी रीड? So can I read? Yes, Mataji. Hare Krishna. In 1885, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote, Lord Chaitanya did not advent himself to liberate only a few men in India. Rather, his main objective was to emancipate all living entities of all countries throughout the entire universe and teach the eternal Dharma. Lord Chaitanya states in Sri Chaitanya Bhagavat, in every town, country and village, my name will be sung. There is no doubt that this unquestionable order will come to pass.
Although there is still no pure society of Vaishnavas, Lord Chaitanya's prophetic words will, in a few days, come true. Very soon, the unparalleled path of Harinam Sankirtan will be propagated all over the world. Oh, for that day when the fortunate English, French, Russian, German, and American people will take up banners, mridangas, and kartals and raise kirtan through their streets and towns. When will that day come? Oh, for the day when the Western fair-skinned men from one side while chanting Jai Sachidanand Ki Jai will extend their arms and embracing the devotees of our country. Coming from another side, treat us with brotherly feeling. When will that day be? In the caption to Bhakti Vinod Thakur's photo in Teachings of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada described him as the pioneer of the program for benedicting the entire world with Krishna consciousness. And he saw himself as the Thakur's humble servant in that effort, fully dependent on his mercy. तो आप सोच सकते हैं कि उस वक्त पे कौन ऐसी प्रेडिक्शन कर सकता है जब आप देश गुलाम है, हाँ, और इतनी बुरी तरह से कोई भी किसी को भी अपने अपने ही धर्म में विश्वास नहीं है, और ये कह रहे हैं कि कब वो टाइम आएगा जब इटालियंस, जर्मन्स और फ्रेंच सब आएंगे और नवदीप मायापुर में आके जय सच्चिदानंद करेंगे, जो वहां के अपने ही देशवासी नहीं कर रहे हैं, बल्कि देशवासी क्या छोड़िए, अपने जो वहां के नवदीप के रहने वाले लोग हैं वही नहीं कर रहे हैं। ये हालत थी उस वक्त। इन्होंने ये जो है इसकी घोषणा की, और आप देखिए, अब ये पढ़िए कि प्रभुपाद इसके बारे में क्या कहते हैं। Who will read? Can somebody read? Yes, I can read, Prabhu. Yes, Prabhu, go ahead. Srila Prabhupada Thakur, on his reflections of Srila Bhakti Vinod Thakur, when somebody says that I am the same man and I was born in 1890. इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से पढ़िए प्रभु जी, सॉरी, यहाँ से पढ़िए। Prabhupada, he sent his first book in 1896. Bhakti Vinod Thakur was the first origin of the movement, but he simply thought of it and he was expecting some others that willing to take up work. When somebody says, I am the same man and I was born in 1896. So he wanted to combine the whole civilized nations under the Chaitanya Mahaprabhu's cut, Hare Krishna movement. I think I have given this hint in the teachings of Lord Chaitanya room conversation with Canadian ambassador to Iran, March 13, 1975, Iran. Yes, प्रभु जी, ये रेफरेंस है, ये इस ऊपर वाली कॉन्फ्रेंस। अब नीचे पढ़िए प्रभु जी। Prabhupada, it is the desire of Bhakti Vinod Thakur to preach the Chaitanya cult all over the world. And in 1875, he predicted that someone would come very soon who would individually preach this cult all over the world. So if his benediction is there and my Guru Maharaj's blessings are there, he can go ahead without any impediment. But all of us must be very sincere and serious. So ये हाँ, प्रभुपाद लेटर टू जयपताका महाराज, ये 23 फरवरी का उससे है। अभी अगला पढ़िए प्रभु जी। When Bhakti Vinod Thakur stated that he was leaving this planet with his work unfinished, then let us finish. We are descendant of Bhakti Vinod Thakur, so he kept unfinished so that we shall get the chance to finish it. That is his mercy. He could have finished immediately. He is a Vaishnava. He is all powerful, but he gave us the chance. You foolish people, you all also work. That is the mercy. So we should pray to Bhakti Vinod Thakur that we are your grandchildren, great grandchildren, and we have got some right to beg some mercy from you. The grandchildren get some indulgence from the grandfather. So I pray like that. It is Bhakti Vinod Thakur's mercy. Krishna does not require anyone's help. Still he is asking, surrender to me. He doesn't require anyone's surrender, but it is for him good, one who surrenders. Not Krishna is in need of anyone's service. He is complete, but he comes as if he is in helpless condition and asking for us to surrender. So that is for his good. One who is surrendered, he will get the result. Krishna is self-sufficient. Similarly, Bhakti Vinod Thakur is self-sufficient. But if he said that I am keeping unfinished, that means he gave us the chance and the opportunity. So we should always pray to Bhakti Vinod Thakur to be merciful upon us and that we can execute his unfinished task.
And never we should think that what Bhaktivinoda Thakur could not finish, I have finished. Don't think like that. It is not like that. Hare Krishna. So हम समझ सकते हैं कि how strong that connection was and how much he imbibed the teachings of Srila Bhaktivinoda Thakur. और आप पाएंगे कि हमारी जो ये देखिए कि ये 5 चीजें जैसे आप हम देखते हैं इस्कॉन के अंदर, सो दीज आर ऑल कनेक्टेड थ्रू हिम. सो द फर्स्ट वन कि ही एंगेज हाउस होल्डर्स इन लोकल प्रीचिंग एंड इनिशिएटिव. जो पहला नामहट्ट शुरू किया, आउटरीच प्रोग्राम बाय यूजिंग गृहस्थ was done by Bhaktivinoda Thakur, what we follow in ISKCON today. Then he established the principles कि जो वैष्णव हैं कि need not be born as a Brahman, जब और वो ब्राह्मण से भी उच्च है, ब्राह्मण तो है ही बल्कि ब्राह्मण से भी उच्च है. तो ये जो प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय भक्तिविनोद ठाकुर. और देन this translation, explaining and publishing of the Vaishnav scriptures for the understanding of the current audience, देश पात्र काल के अनुसार भक्तिविनोद ठाकुर ने 100 से भी अधिक जो है किताबें लिखी. तो इसी तरह से आप देखते हैं कि प्रभुपाद ने अपने जीवन काल में 60 से भी अधिक जो है जो पुस्तकें लिखी, और सेम ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन और पब्लिशिंग ही डिड. ऑल दैट स्टार्टेड बाय भक्तिविनोद ठाकुर. ऑल्सो दिस होल विजन की जो मायापुर का था, और कि द वंडरफुल कि एक बार इनको जब ये गोद्रुम द्वीप पे थे, तो वहां पर इनको एक बार जब ये छत पे खड़े थे तो इनको दूर एक जो है एक भव्य मंदिर नजर आया ऐसे. तो इनके आसपास जो सेक्रेटरी थे, इन्होंने पूछा कि आपको कुछ नजर आ रहा है? उन्होंने बोला नहीं. तो वहां छोटे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, तो ही टोल्ड हिम कैन यू सी समथिंग? सो ही सेड यस आई कैन सी द टेंपल. सो दैट इज अ टेंपल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम जो TOVP आ रहा है. सो दैट इज अ प्लेस ही पॉइंटेड like that. So he predicted that कि ये अद्भुत मंदिर यहाँ पर स्थापित होगा. He also established the place of birth of चैतन्य महाप्रभु. Actually पहले जो है चैतन्य महाप्रभु से भक्तिविनोद ठाकुर से पहले जो मानती जो वहाँ के बाबा जी थे, उन्होंने ऐसा किया हुआ था कि जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है वो नवदीप में है, on that side of the Ganga, not this side of the Ganga, Mayapur. So all this was revealed, this another katha was revealed to Bhaktivinoda Thakur. One day he saw an effulgent tree and he found, when he went there, उसका नाम मियापुर, मायापुर का नाम मियापुर हो चुका था मुस्लिम्स के टाइम के ऊपर. और फिर देखा कि उन्होंने कि वो जो पेड़ है उसके पास बहुत सारी तुलसी है, और तो उनको पता था कि मुसलमान के एरिया में तुलसी नहीं होती है, तो इतनी तुलसी क्यों है यहाँ पर. तो फिर वहां पर उन्होंने मैप सारे निकलवाए, पुराने मैप कराए, गंगा की डायरेक्शन पिछले 100-150 साल में कितनी चेंज हुई है, 200 साल में वो निकाली, और फिर उन्होंने निकाला कि किस तरह से कि जो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वो नवदीप नहीं है, वो क्या है, वो मायापुर में है. तो वो उन्होंने, तो जो ये हम देखते हैं जब हम गौर पूर्णिमा पे या मायापुर जाते हैं तो वहाँ पर जो ये जो मंदिर है, योगपीठ है, उसकी जो बर्थ साइट है वो भक्तिविनोद ठाकुर ने, ही डिड दैट, ही फाउंड दैट. और ये जो उनके जो गौर लक्ष्मी विष्णुप्रिया जो डीटीज हैं, वो भी उनके इस्टेब्लिश किए हुए हैं वहाँ पर. सो इस तरह से हम पाएंगे कि बहुत ही इनका योगदान रहा. और हम लोग इनके घर भी गए हुए हैं, जो इनकी भजन कुटीर थी वहाँ भी गए हुए हैं. आपको याद होगा ये यहाँ पर गोद्रुम के अंदर कि स्वनंद सुख कुंड गए हैं, और राइट साइड पे उनका बेड, उनका पंखा, काफ़ी चीज़ें उन्होंने वैसे ही वहाँ पर स्वनंद सुख कुंज में उनका रूम वैसे का वैसे ही रखा है अभी भी. अब ठीक से मेंटेन करके रखा है. तो वहाँ जाके हम आज भी इनके दर्शन कर सकते हैं. बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि एक बार जो प्रभुपाद हैं वो उनको बड़ा डर था कि मायापुर में बाढ़ आती है, कि मायापुर में बहुत बाढ़ आती है. तो उनको डर था कि अगर मंदिर बनाएंगे और बाढ़ आएगी तो मंदिर खराब हो जाएगा.
हाँ, तो उनका जो सेकंड ओपिनियन था वो ये था कि फिर हम भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान है बीरनगर, हम वहां अपना टीओवी भी बना सकते हैं. That was Prabhupada's idea. But later on, when they discussed and then Prabhupada said no, they found out कि वहां पर हाइट ऊपर करके ऐसे बना सकते हैं. पर आप सोच सकते हैं कि प्रभुपाद का भक्ति विनोद ठाकुर के प्रति क्या रहा होगा कि जो कह रहे हैं कि टीओ यहाँ महाप्रभु के जन्म स्थान पे नहीं तो भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान पे हम टीओ भी बना सकते हैं, लाइक दिस. सो इस तरह से. और जो लास्ट पॉइंट था हमारा, जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से वो जो 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए. एक्चुअली ये डिस्कशन जो है ये गिरिराज महाराज का एक मैं सुन रहा था, उसके अंदर उन्होंने ये महाराज ने बनाए थे, उनके तो लंबा प्रेजेंटेशन था. तो ये 5 पॉइंट उसमें से मैंने निकाले थे कि एक इसी तरह से पूरी जो प्रीचिंग है, गृहस्थ प्रीचिंग, वो शुरू की. और हाँ, जिनका ब्राह्मण जन्म नहीं हुआ उनको ब्राह्मण बनाना, और ग्रंथों को जो है वो एक करंट लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करना, उस पर अपना टीका देना, और जो मायापुर को एक स्पिरिचुअल सिटी की तरह एस्टैब्लिश करना. और लास्टली जो उनकी जो चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, हाँ, कि पूरे विश्व में हाँ मेरा नाम होगा, हाँ, उसको जो पूरा किया, वो उसको पूरा करने में जो उनकी इच्छा रही वो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बनाई. हाँ, पर जिसको जो पूरा किया वो श्रील प्रभुपाद ने किया. तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी हमारे आज के प्रैक्टिस हैं, उन प्रैक्टिस के अंदर जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है. हाँ, आपको आप में से कितने लोग, मुझे नहीं पता, कि जानते हैं कि जो हम जय राधा माधव गाते हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है. जो शरीरा विद्या जाल जो हम प्रसाद पाने से पहले जो कहते हैं वो उनका लिखा हुआ है. हाँ, जो सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, ए मौन दुर्मति, मम मन मंदिर, ये सारे भजन जो है, हाँ, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने गाए हुए हैं. और जो वृंदावन में हम गाते हैं विभावरी शेषा, हाँ, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ है. तो हर रोज उनके गाए हुए भजन जो हम गा रहे हैं, और मैं आपको उनके गानों की एक देखता हूं कि अगर मेरे को उनके जो लिखे हुए जो भजन है, अगर मैं आपको उनकी लिस्ट दिखाऊं, हाँ, मैं देखता हूं कि अगर लिस्ट मिल जानी चाहिए तो आपको बड़ी हैरानी होगी वो लिस्ट देख के कि वो लिस्ट ही कितनी बड़ी है. एक मिनट, ये देखिए, मिल गई मुझे लिस्ट. ये देखिए, ये लिस्ट है जो भजन, मतलब 100 तो किताबें लिखी उन्होंने, उन 100 किताबों के अलावा ये भजन लिखे हैं. देखिए, ए से लेके ये देखते जाइए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं. यू सी, होल शरणागति इज एक्सप्लेन्ड इन ए सेट ऑफ भजन्स बाय श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर. तो आप देखिए कितने ही मेधावी, हाँ, ये स्कॉलर और भगवान के भक्त रहे कि जिन्होंने इतने कम समय के अंदर पूरा अपना समय जो है भगवान की सेवा में और भगवान के नाम के प्रचार के अंदर. ये देखिए, ए से लेके वाई तक, हाँ, कितनी लंबी लिस्ट है इनकी. हाँ, और प्रभुपाद बताते थे, बहुत प्रभुपाद ने ग्लोरीफाई किया है भक्ति विनोद ठाकुर को, क्योंकि वो इनके जीवन में बताते थे कि कोई भी व्यक्ति गृहस्थ होते हुए भी आचार्य बन सकता है. हाँ, अगर कोई बोलते वक्त था प्रभुपाद मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो बोलते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर भी गृहस्थ थे. वो बोलते थे पर मैं तो बड़ा बिजी हूँ, मैं तो किसी IT कंपनी में काम करता हूँ, मेरे को तो 24/7 आजकल के दिन तो प्रभुपाद बोलते थे कि आपका काम, हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता. कि उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो कार्य करना, कि कि उसको इम्पोर्टेंट डिसीजंस देने हैं. हाँ, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कोई ऐसा कोई नॉर्मल नौकरी नहीं है कि आपने बैठ के कोई फिजिकल काम कर दिया, बल्कि आपको बहुत ही ज़रूरी, आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर आप उन पे डिसीजन दे रहे हैं. हाँ, और तो प्रभुपाद बताते थे बार बार, हाँ, कि कोई भी व्यक्ति चाहे गृहस्थ भी हो, वो आचार्य बन सकता है. ये नहीं बोलते थे गुरु बन सकता है, बोलते थे कि आचार्य बन सकता है, और उसका जो प्रमाण है वो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर है. अब ये देखिए, ये उनका अप्रोक्सीमेट टाइम है
हाँ, ये कैन एनीबडी रीड? Yes, please. रीड. 8 p.m. to 10 p.m. Rest 2 hours. 10 p.m. to 4 a.m. Right. 4 a.m. to 4:30 a.m. Rest. 4:30 a.m. to 7 a.m. Chant Japa. 7 a.m. to 7:30 a.m. Correspondence. 7:30 a.m. to 9:30 a.m. Sudhi Shastras. 9:30 a.m. to 10 a.m. Bath Prasadam. Half liter milk. Fruit, 2 chapatis. 10 a.m. to 1 p.m. Court duties. 1 p.m. to 2 p.m. Refresh at home. 2 p.m. to 5 p.m. Court duties. 5 p.m. to 7 p.m. Translate Sanskrit Shastras to Bengali. 7 p.m. to 8 p.m. Bath Prasadam, half liter milk, 2 rice, 2 chapatis. Sleep 3 hours, write 8.5 hours, japa study 4.5 hours, and work 6 hours. सो हम में से जो लोग सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है कि गृहस्थ होते हुए ये सारे कार्य करना, तो हम देख सकते हैं इनके जीवन से, हाँ, कि किस तरह से कि एक इतने महान आचार्य हुए जिन्होंने पुस्तकें भी लिखी, जिन्होंने प्रचार भी किया, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी ढूंढा, उसको वहां पर डीटीज भी एस्टेब्लिश किए, हाँ, और इतने सारे सैकड़ों भजन भी लिखे, हाँ, और तब भी भगवान को ये प्रार्थना की कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया और मुझे एक रे ऑफ विष्णु, एक मुझे अपना जो है कोई भक्त भेजिए जो प्रचार कर पाए। हाँ, पर आज हम इस्कॉन में जो भी करते हैं, हाँ, हम पाते हैं कि उसकी जो सारी नींव है सारी की सारी वो किसने रखी है? वो भक्ति विनोद ठाकुर ने रखी है। एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम आवर आचार्यस। दैट इज व्हाई देयर इज सो मच पोटेंशियल। देयर इज सो मच पोटेंशियल। और तो इसके अंदर ये मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रभुपाद किस तरह से प्रार्थना करने के लिए। Can you read this one? Yes, sir. In a conversation in Mayapur in March 1974, Srila Prabhupada, hearing a Kirtan party in the background, commented that Srila Bhakti Vinod Thakur had desired that Europeans and Americans will come. They will dance here with the chanting, Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. So that is being done. When they chant and dance, I simply remember Bhakti Vinod Thakur. That's all. I pray to Bhakti Vinod Thakur. Now, they have come to your shelter. Give them protection. That's all. What can I do more? I cannot do anything more. हरे कृष्ण। हाँ, सो आप पाएंगे कि प्रभुपाद had a very strong connection with श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, और हमारी सारी जो भी पोटेंसी आ रही है, इसीलिए इस्कॉन में इतनी प्रॉब्लम होते हुए भी जो है इतने उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे सब होते रहते हैं, पतन हो जाता है सीनियर डिवोटीज का, कुछ ना कुछ हो जाता है, बट क्योंकि सारा कुछ जो है वो परंपरा और आचार्यों के ऊपर निर्भर है, सो जो प्रचार है वो बढ़ रहा है, जो संस्था है वो और मजबूत हो रही है, और आगे जो भगवान की जो वाणी थी, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, कि सर्वत्र प्रचार होई बे मेरा नाम, तो वो जो है उसको जो सार्थक है वो इस्कॉन कर पा रहा है। और उसका कारण ही यही है कि उसको सार्थक करने का, कि जो सारा कुछ हमारा जो सारी डिवोशनल लाइफ है, सुबह से लेके शाम तक हम वी आर फॉलोइंग आवर आचार्यस, उनको हम कंप्लीट रूप से हम उन पे निर्भर हैं, उनकी कृपा पे निर्भर हैं। और आज ये जो स्पेशल दिन है, हम हर रोज स्पेशल है हमारे लिए, पर जो भी ये आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन आते हैं उनके अंदर हम और दिल से हृदय से प्रार्थना कर सकते हैं। इनका कल था दिवस, पर आज भी प्रार्थना कर सकते हैं भक्ति विनोद ठाकुर से, कि जिस तरह से तन मन धन से इन्होंने अपना सर्वस्व जो है भगवान की सेवा में लगाया, कि उसकी एक बूंद जो है वो हमारे सर पे भी आए, और किसी तरह से हम किसी जन्म में हम भी भगवान की 0.001% इस तरह से भगवान की सेवा कर पाए। तो इतना जो है इनका जो चरित्र है, वो इतना ज़्यादा महान चरित्र है इनका। और जब इन्होंने मायापुर का जब
जब जगह ढूंढी चैतन्य महाप्रभु के जन्म की, हाँ, तभी इन्होंने भविष्यवाणी, तभी इन्होंने श्री नवदीप महात्म्य जो हम पढ़ते हैं कि जो वहाँ का, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। और वहीं इन्होंने लिखा था कि एक अद्भुत मंदिर, हाँ, हे अभी हे या हई ब प्रकाश, हाँ, गौरंगेरा नित्य सेवा हई बे विकास, हाँ, कि वो जो है एक ऐसा अद्भुत मंदिर जो है वो प्रकट होगा और पूरे विश्व जो है, हाँ, को वो चैतन्य महाप्रभु की नित्य सेवा में लगाएगा। हाँ, सो तो इस तरह से हम देख सकते हैं। और प्रभुपाद ने जो जो पहली पुस्तक प्रभुपाद ने विदेश जाके जो पहली पुस्तक लिखी, वो पहली पुस्तक किसको मालूम है कौन सी लिखी प्रभुपाद ने? एनीबॉडी रिमेंबर्स? फर्स्ट बुक प्रभुपाद पब्लिश्ड आफ्टर गोइंग टू अमेरिका। एनीबॉडी knows which was the first book Prabhupada published? हाँ, उनकी पहली बुक थी टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और जो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य है उसका जो ही ऑफर्स इन द कैप्शन टू ऑफर्स इट टू भक्ति विनोद ठाकुर ओनली। हाँ, और उसमें वो लिखते हैं, एक मिनट में आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए उसमें लिखते हैं ये कि Prabhupada described Bhaktivinoda Thakur as the pioneer of the program for benedicting the entire world with Krishna consciousness. हाँ, ये हमने पढ़ा था। And he saw himself as Thakur's humble servant, like this. So he offered it to him and said and described him as the pioneer of the program for benedicting the entire world with Krishna consciousness. to Bhaktivinoda Thakur. देखिए, तो ये कृपा है भक्ति विनोद ठाकुर की कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं को दोबारा से प्रज्वलित किया, एस्टैब्लिश किया और उसी परंपरा में प्रभुपाद आए। हाँ, और इसी कारण, हाँ, इन्हीं के कार्यवर्ष हम लोग आज जो है चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। हाँ, और कह सकते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं और उनके भक्तों के बारे में जानते हैं, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानते हैं और हाँ, उनके धाम के बारे में जानते हैं। तो जो सारा कुछ जो है, सारा का सारा, हाँ, ये भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से है सारा कुछ। हाँ, सो ऑलरेडी more than 1 hour has happened. I try to make everything short, but so पर आप इस तरह से आप हम अपना जो संबंध है, हाँ, प्रभुपाद के वाया प्रभुपाद we can make our संबंध eternal with any आचार्य। हाँ, तो वही अगर हम जो विभावरी शेषा या संसार दावा या जय राधा माधव, नॉट संसार दावा बट जय राधा माधव, और ये शरीर विद्या जाल, सिर्फ ये गाते हुए भी अगर हम इनका स्मरण करेंगे, हाँ, तो हम हमारा जो संबंध है धीरे धीरे बनेगा। इनके जो भजन है, हाँ, बहुत ही सुंदर भजन है। पूरी जो शरणागति जिसको भक्त बोलते हैं, शरणागति कैसे करें, कृष्ण की शरणागति का क्या मतलब है, वो पूरी शरणागति, हाँ, 6 स्टेप्स के अंदर अलग अलग भजनों में, हर एक स्टेप के ऊपर 6 या 7 भजन लिखे हैं उन्होंने शरणागति के ऊपर। सो वो पूरी 0 से, हाँ, टू 100% सरेंडर वो अपने भजन से बताते हैं सारे के सारे। इसी तरह से अगर हम भागवतम ठीक से पूरा पढ़ते हैं और उसके बाद और समझना चाहते हैं तो कृष्ण संहिता पढ़ सकते हैं। वो बहुत ही सुंदर जो है वो शास्त्र है जिसके अंदर उन्होंने संबंध अभिधेय प्रयोजन के हिसाब से भागवतम के मेन श्लोकों का बताया है और उनका टीका किया है उन्होंने। सो आज के दिन हम जो है एक और कार्य कर सकते हैं कि इनका जो प्रणाम मंत्र है वो हम पढ़ सकते हैं। इट्स ए वेरी गुड डे टू रीड एंड नो हिज प्रणाम मंत्र। सॉरी, सो ये है प्रणाम मंत्र। सो मैं बोलता हूँ, आप म्यूट करके ही मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, नहीं तो सब बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। 3 बार बोलेंगे, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगावरायते।
I offer my humble, respectful obeisances unto Sachidanand Bhakti Vinod, who is the transcendental energy of Chaitanya Mahaprabhu. He is a strict follower of Goswamis, headed by Srila Rup Goswami. So ये इनका प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। गौर शक्ति स्वरूपाय, कि गौर शक्ति के स्वयं स्वरूप हैं। ही इज हिमसेल्फ गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायत। ही इज द strict follower of Goswamis, followed by Rup Goswami. और इसीलिए इनको सेवंथ गोस्वामी भी बोलते हैं। और एक छोटा सा मैं आपको प्रसंग सुनाता हूं, उसके बाद जो है हम छुट्टी करते हैं। एक बार जो इनके जो गुरु थे, जो इनके जो दीक्षा गुरु थे, वो बिपिन बिहारी गोस्वामी थे। और एक बार बिपिन गोस्वामी जो बिहारी हैं वो इनके घर आए, और जब इनके घर में आए तो जैसे प्रणाम करते हैं शिष्य, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको, अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनको प्रणाम किया। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके गुरु थे, उन्होंने अपने जो पैर हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर के सिर के ऊपर रख दिए। कि अपने पैर लेके उन्होंने अपने इनके सिर के ऊपर रख दिए। तो उस वक्त जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, वो मेरे ख्याल से 7-8 साल के बालक थे वो। तो उन्होंने भी देखा कि ये क्या किया इन्होंने। तो उनके जो पिताजी हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वो उस वक्त थोड़ा सा बाहर गए, और जब वो बाहर गए तो उन्होंने जो अपने पिताजी के गुरु हैं, उनको उन्होंने बोला कि आप अपने आप को गुरु समझते हैं, पर सच्चा गुरु वो होता है जिसको ये पता हो कि कौन भक्त किस श्रेणी का है। और आपने इतनी हिम्मत की कि मेरे पिताजी के ऊपर, उनके सिर के ऊपर आपने अपने पैर रख दिए। तो इसका मतलब आपको नहीं पता कि वो कौन है। और उन्होंने बोला कि जो मेरे पिताजी हैं वो भगवान के क्या है, नित्य पार्षद है। और इसका मतलब ये है कि आप एक कनिष्ठ डिवोटी हैं। कि जो आप पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद भी बताते थे कि जो कनिष्ठ डिवोटी है वो उसका डीटी के साथ तो रिलेशनशिप रहता है, बट वो ये नहीं भांप पाता कि कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, उसको इसकी पहचान नहीं है। तो जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, छोटे बच्चे हैं, उन्होंने आरोप लगाया उनके ऊपर और बोला कि आप जो है एक कनिष्ठ भक्त हैं, क्योंकि आपको पहचान नहीं है कि ये मेरे पिताजी कौन है। और उन्होंने बोला कि आज आपने कर दिया है, पर आगे आज के बाद आपको ये दुस्साहस कभी मत करिएगा। और वो हैरान हो गए जो उनके गुरु थे। और जब भक्ति विनोद ठाकुर वापस आए थोड़ी देर बाद, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा पुत्र है, ये इतना बोल्ड है कि ये मुझे ही जो है शिक्षा दे रहा है। सो इस परंपरा से हम जुड़े हैं। देखिए, कई बार हम लोग जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक रिलीजियस ले लेते हैं, रिलीजन की तरह ले लेते हैं कि ठीक है, हम हिंदू हैं, हम लोग अपना हिंदू धर्म ठीक से पालन नहीं कर रहे थे, इस्कॉन से जुड़ गए, तो अब हम चलो ठीक है, राम कृष्ण हम जानते हैं भगवान है, तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और धर्म में वापस जुड़ गए। पर ऐसा नहीं है। जो एक गौड़िया वैष्णव बनना एक बहुत ही उच्च, एक वैष्णव बनना बड़ी ही उच्च श्रेणी है, और एक गौड़िया वैष्णव जाना एक बड़ी ही उच्च श्रेणी है। और आपने पढ़ा कि किस तरह से प्रभुपाद ने बताया वो जो एक भक्त को कि किस तरह से कि वो वैष्णव है और वो कार्य पूरा नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं किया उन्होंने कि हमारे लिए छोड़ दिया, क्योंकि जो एक वैष्णव है वो पूरे संसार को मुक्ति दिला सकता है। इतनी ताकत है एक वैष्णव के अंदर। तो कभी कभी हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हम अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे, तो पूरे संसार को मुक्त करने का तो कहना ही क्या। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रीला प्रभुपाद, ये गौड़िया वैष्णव है। और ये हैं ऐसी पर्सनैलिटीज जो पूरे संसार को मुक्त कर सकते हैं। तो ऐसी पर्सनैलिटीज के साथ हमें अपना जो है एक संबंध बनाने का कोशिश करनी चाहिए। और काफ़ी सारे जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो आई, उसके बारे में हमें नहीं पता कि वो स्पिरिचुअल जगत में कौन है। बट फॉर्चुनेटली जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने स्वयं बताया अपने बारे में कि मैं कमल मंजरी हूँ। उन्होंने भजन लिखा हुआ है, और जब की पराकाष्ठा है कि आपको अपना स्वरूप पता चलता है,
तो वो अपने बारे में इन्होंने स्वयं ही बता दिया, हाँ, कि आई एम ए कमल मंजरी. सो मंजरीज आर स्मॉल गर्ल्स who assist Radha Krishna in the pastimes. So he is in the spiritual world, he is Kamal Manjari. बताइए. हाँ, तो वो देखिए एक ऐसी पर्सनैलिटी, हाँ, के परंपरा में हम आए हैं जो भगवान के नित्य सेवक हैं, हाँ, और कमल मंजरी है, देखिए, हाँ, लाइक दिस. तो इसीलिए हाँ, हमें बड़े ध्यान से और बड़े ही और रेफरेंस के साथ देखना चाहिए कि क्या हम कि जो इनकी जो आचार्य जो पाथ दे गए हैं वो हम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. हाँ, और इनकी जीवनी देख के, रोज का दिनचर्या देख के हमें देखना चाहिए कि मेरे पास कितना समय है और मैं कितना समय कर सकता हूँ. इसके साथ तो टाइम ज़्यादा हो गया, सो वी विल एंड द क्लास नाउ. सो आई होप कि वी कुड do some seva to Srila Bhaktivinoda Thakur and to Srila Prabhupada and to our Guru Parampara, and we develop some bhav, some respect more for this unique personality, Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. So we'll end the class now. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhayeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaः. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna.